Hello students, very good evening. Once again I am here today. Hope you will be here and hearty. I am also fine. And my dear friends, how are you? Hope you will be fine and healthy. God bless you all. Children, as I am giving you daily 1 or 2 video regarding English, some content I am giving you, sometime I am telling you rules. So same is the case today. Today I brought some structures for you and they are very important for the speaking. There is no rules and regulation and little bit rule is there that I will tell you while reading the sentences, while explaining. Okay. So look at the board. Some important structures. The very first I gave today, masterpiece. When we want to praise someone, जब हम किसी को प्रेज करना चाहते हैं, किसी की हमें तारीफ करनी है, उसके लिए स्मार्ट इंग्लिश में जो वर्ड्स होता है वो वर्ड होता है वो क्या होता है? मास्टरपीस, है ना. वी कैन से फाइन, फाइन ऑल्सो वी कैन से, एंड अदर वर्ड्स आर देयर. इट इज़ वेरी नाइस. सो द बेस्ट वर्ड मास्टरपीस, अति उत्तम रचना. इन हिंदी इट इज अति उत्तम रचना, और इन इंग्लिश वी मे एक्सप्लेन ऑफ द फाइन क्वालिटी, फाइनेस्ट क्वालिटी. तो रूल्स इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ए एंड प्लस मास्टरपीस. किसी भी आपको सेंटेंस को बोलना है, देन व्हाट विल बी द रूल आई हैव रिटन हेयर. तो रूल से आपको शायद नहीं आएगा समझ में. यू जस्ट सी द सेंटेंसेस. देयर इज नो नीड ऑफ हिंदी, सो आई हैव रिटन इन इंग्लिश. यू आर अ मास्टरपीस. कोई आपका फ्रेंड, कोई भी आपके इन फ्रंट में है, कोई भी सामने है, आप उसको बोलना चाहते हैं कि यू आर वेरी नाइस, तो यू विल से you are a masterpiece. As I have written there, order of the sentence, subject it is plus helping verb लिखा है वहाँ, फिर a लिखा है, फिर masterpiece. This is the structure, order of the sentence. Oh God, oh my God, this is exclamatory mark. Oh my God, she is a masterpiece. किसी की तारीफ करनी है, oh my God, हे भगवान, वो तो एक masterpiece है, मतलब she is the best. Okay. Today the pen is a little bit light, so just take care. I am reading minutely, so please pay attention. Third one is the song is a masterpiece. I love it. ये song जो है ये एक masterpiece है, बहुत ही अच्छा song है, मैं इसको like करता हूँ. I like this song. I love it. Fourth, his brother was a masterpiece. Someone जैसे होता है किसी की death हो जाती है और वो बहुत अच्छा इंसान है, तो when we want to praise that person, his brother was a masterpiece. और in present we can say his brother is a masterpiece. किसी को हमने सामने कहना, when someone is alive, तो we may say that person, so and so person is a masterpiece. उसकी क्वालिटी के लिए बोलेंगे. फिफ्थ वन, my father is a masterpiece. मेरे फादर जो हैं वो masterpiece हैं. He is the best father in the world. और masterpiece से यहाँ पर including all the qualities of the father. My father, I am telling about my father. Shalini Bhatia is telling about her father. मैं अपने father के बारे में बोल रही हूँ कि my father also was a masterpiece. He was a learned man. मेरे father जो थे, he was a learned man. I learned a lot, so many things from my father. He was a masterpiece. क्योंकि मेरे father he is not alive, तो I will say my father was a masterpiece. So this was the first structure, and the second, I am not one of those. मैं उनमें से नहीं हूँ. जैसे आप भी बोलते होंगे इस तरह के सेंटेंस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोते रहते हैं, या मैं उनमें से नहीं हूँ जो साथ छोड़ देते हैं. तो दैट टाइम वी जस्ट गेट कन्फ्यूज्ड कि व्हाट टू यूज़ फॉर द स्ट्रक्चर इन इंग्लिश, क्या यूज़ करना है. तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज. वेरी सिंपल, ये आपको स्टार्टिंग में लगाना है. देन यू हैव टू ऐड द रिलेटिव प्रोनाउन एंड देन सेंटेंस. मैं उनमें से नहीं हूं जो काम नहीं करते. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वर्क. देखिए, काम नहीं करते तो नेगेटिव, हु डोंट वर्क. मैं उनमें से नहीं हूं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज. इट इज़ वेरी इजी स्ट्रक्चर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. मैं उनमें से नहीं हूं जो बिना बात के हंसते हैं. तो वो, सॉरी, इट इज़ रिटन वो उनमें से नहीं जो बिना बात के हंसते हैं. शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु लाफ विदाउट रीज़न. शी की जगह आप ही भी कर सकते हैं, जेंडर हो सकता है, लड़का हो. तो शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज और ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु लाफ, जो कि हंसते हैं. फर्स्ट फॉर्म विल कम हियर. आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर. यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर, आई एम नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु, तो आएगा ही, रिलेट करेगा इनको, रिलेटिव है ये.
और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है, देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स अगर हैं तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वर्क, शी इज नॉट वन ऑफ दोज हु लाफ विदाउट रीजन, मैं उनमें से नहीं हूं जो रोते रहते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज। वेरी सिंपल, ये लिखना ही है आपको, और आपको रिलेट करने के लिए हु लिखना ही है। पर्सन के लिए हु आता है, थिंग्स के लिए भी आता है, यू मस्ट बी अवेयर। हु कीप क्राइंग, आपको कल दिया था कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, और मैं उनमें से नहीं हूं जो रोते रहते हैं। ठीक है, इसका चेंज भी हो सकता है, मैं रोने वालों में से नहीं हूं, तो उसकी इंग्लिश भी यही बनेगी, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कीप क्राइंग, मैं उनमें से नहीं हूं जो काम नहीं करते, मैं काम ना करने वालों में से नहीं हूं, तो इंग्लिश विल बी सेम। ट्रांसलेशन, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वर्क, तो दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, प्लस हु आपको लगाना है। हु क्या है? इट विल रिलेट द सेंटेंस। ठीक है, अब some imperative sentence that are very easy to speak and you might be knowing, so I am giving you imperative sentence, you are aware imperative sentence में verb से start होते हैं, they start from the verb, वहाँ पे इन sentences में command भी होता है, request, somewhere it is request होती है वहाँ पर, और order है ना, and they start from the verb, if there is negative तो don't से आएगा, if there is positive तो verb आएगा। okay? यहाँ ठहरो, stay here, wait here, यहाँ पर दो मीनिंग है, स्टे, यहाँ ठहरो तो स्टे ही आएगा, और अगर वेट के लिए बोला है कि इंतजार करो तो वेट हेयर। इधर देखो, लुक हेयर, यहाँ हेयर का मतलब तो मालूम होगा, यह लो, टेक इट, इसको लो, ऊपर जाओ, गो अप, लिखा होता है गो अप, बट ऊपर जाने के लिए गो अप स्टेयर्स भी बोला जाता है, अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो आप स्टेयर्स जाएंगे, गो अप स्टेयर्स, नीचे जाओ, गो डाउन, और गो डाउन स्टेयर्स। ठीक है, और नीचे आने के लिए क्या होगा, कम डाउन स्टेयर्स। देयर इज वन जोक रिगार्डिंग दिस के समवन सेज कि मुझे इंग्लिश आ गई है। कैसे आ गई है भाई? कि यहाँ आओ कि इंग्लिश क्या होगी कि कम हेयर, और वहाँ जाओ तो वहाँ जाकर बोल दूंगा कि कम हेयर, नो, तो यहाँ आओ कम हेयर, एंड वहाँ जाओ गो देयर। तो ऐसे ही नीचे आओ की क्या होगी, कम डाउन स्टेयर्स या कम डाउन। सी, उतर जाओ, गेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू द टेंस वो चेंज हो जाएगा, मैं बस से उतरा, आई गॉट ऑफ, है ना, तो गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, बी रेडी और गेट रेडी, दोनों आते हैं, तैयार हो जाओ, बी रेडी या फिर गेट रेडी, दोनों में से एक, वन ऑफ दीज, मतलब इसमें से दीज टू में से वन आएगा, या तो तैयार होने के लिए आप बोलेंगे बी रेडी या फिर गेट रेडी। धीरे चलो, वॉक स्लोली, चलने की वॉक होती है, यहाँ रुको, स्टॉप हेयर, यहाँ पर रुको। सो दीज आर द इम्पेरेटिव, वेरी इजी टू स्पीक, और आपको आते भी होंगे, बट जस्ट गो थ्रू दीज सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव्स आर देयर, इम्पेरेटिव ही बोलते हैं, वी स्पीक इम्पेरेटिव सेंटेंस होल द डे, दैट डिफरेंट मैटर की वी स्पीक इन हिंदी, हम बोलते तो हिंदी में है, यहाँ आओ, वहाँ ठहरो, आपके मामा भी आपको बोलते होंगे, आप भी बोलते हैं, अपने सिबलिंग्स को बोलते होंगे, सिबलिंग्स को, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आई गेव यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर ऑफ कॉमन यूज। So just keep trying, going through these sentences, and 2 sentences you have to write in the comment box so that I may know that you got my point. Okay? God bless you all, and subscribe my channel. Don't forget to subscribe and like, comment and share. Bye children.